And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Governmental Guru. Today, I will discuss CCA Rules 1965, Central Civil Services Classification, Control and Appeal Rules 1965. It is part 1. In this part, I will discuss Rules 1 to 7. Briefly, I will explain Rule 1 to 7. You can get 15 lab test MCQs and also pattern of descriptive questions. What type of descriptive questions you can get in the examination also, that I will discuss. Lucid explanation of each rule. So my friend, please subscribe my channel, Sid Governmental Guru. Let's compete, so that you can get notification for my upcoming videos. Please share my video, like my video, so that you can get notification. If anything is doubt, suppose any query is there, you ask me in my phone number. My phone number is 832-778-2034. It is also my WhatsApp number. If any query is there, you can contact with me and also clear your doubt. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel. And due to the demand of many candidates, I bring this video related to the CCA Rules 1965. It is related to the procedure of disciplinary proceedings. If any charge is imposed on the government officer, then you know that disciplinary proceeding would be initiated. So in regarding to this, everything you can get, it is the part 1. Okay. So now I am going to discuss CCA Rules 1965. First 7 rules. Clear? Rule 1, it is short title and commencement. These rules may be called the Central Civil Services CCA rules, Classification, Control and Appeal Rules 1965. ए पर्टिकुलर ईयर को याद रखिए. और एक सभी समय क्वेश्चन आता है. दिस रूल केम इनटू फोर्स ऑन द 1st December 1965. 1st December 1965. इसको आपको याद रखना है. पर्टिकुलरली 1965 तो है, मगर 1st December दिस रूल केम इनटू फोर्स. इट इज रिलेटेड टू द रूल 1, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट. इसमें और इतना ज्यादा जानकारी नहीं है रूल 1 में, खाली आपको याद रखना है कि व्हेन इट केम इनटू फोर्स. रूल 2, इंटरप्रिटेशन. इसमें कुछ डेफिनेशंस देखेंगे और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा और सम डेफिनेशंस भी. इफ यू फेस एनी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आल्सो यू कैन गेट. वेरी इंपॉर्टेंट वन, फर्स्ट वन यू सी, इट इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी? हाउ टू डिफाइन अपॉइंटिंग अथॉरिटी? व्हाट इज द रोल ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी? ओके, इट मीन्स द हाइएस्ट अथॉरिटी. देखिए, among the following who has the power to appoint a government servant? Common definition: appointing authority is the highest authority among all the authorities, the highest authority to appoint a government servant. He has power to appoint a government servant. Certain guidelines you see. The authority who can make appointments to the service or grade the employee belongs to. ठीक है? The authority who can make appointments to the service or the grade the employee. आपका ग्रेड पे है, जैसे 4,800 है कि 4,600 है कि 5,400 है कि 6,600 है कि 7,600 है. तो ग्रेड के हिसाब से, ठीक है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है. डिफरेंट डिपार्टमेंट में, डिफरेंट कैडर में, according to the grade basis, when they are going to appoint the candidates on the basis of grade, तो grade के हिसाब से authorities are there. Okay, they are having power to give the appointment, right? Next क्या है? The authority who can make appointments to the specific post the employee currently holds. Specific post के लिए specific appointing authority है. ठीक है? तो फर्स्ट वन हमको क्या इंफॉर्मेशन मिला कि ग्रेड के हिसाब से अपॉइंटमेंट है, जो अथॉरिटी अपॉइंटमेंट देता है. नेक्स्ट है स्पेसिफिक पोस्ट है, पोस्ट के हिसाब से जो अथॉरिटी अपॉइंटमेंट देता है.
नेक्स्ट है द अथॉरिटी हु ओरिजिनली अपॉइंटेड द एम्प्लॉई टू दैट सर्विस ग्रेड और पोस्ट। ये सब कुछ आ गया। इसमें जो अथॉरिटी एक्चुअली हु हैज पावर टू गिव अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस ग्रेड और पोस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है इफ द एम्प्लॉई प्रीवियसली हेल्ड ए परमानेंट पोस्ट और वाज ए परमानेंट मेंबर ऑफ अनदर सर्विस देन द अथॉरिटी हु appointed him there. If the employee previously held a permanent post or was a permanent member of another service, then the authority who appointed him. So ये जो है आपको appointing authority का definitions है, the authority who has power to give the appointment to government servant on the basis of post, on the basis of service, on the basis of grade, right? तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, राइट। देन इन शॉर्ट ये जो लास्ट पॉइंट को मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं कि सपोज आप एक कैडर में है, आप डेपुटेशन में अदर डिपार्टमेंट को चले गए। आप डेपुटेशन में चले गए, डेपुटेशन में क्या है, टेम्पोररी पीरियड के लिए आप चले गए, मगर आपका जो ओरिजिनल पोस्ट है वहां पर आपको अपॉइंटमेंट मिला था, तो वही आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा। ठीक है। तो जैसे आप फॉरेन सर्विस में आप सपोज ऑटोनोमस बॉडी को जा रहे हो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को जा रहे हो, मगर आपका जो बेसिकली जो पेरेंट डिपार्टमेंट है, पेरेंट डिपार्टमेंट में जो आपको अपॉइंटमेंट मिला था, जो अथॉरिटी आपको अपॉइंटमेंट दिया था, वही आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। क्योंकि फॉरेन सर्विस में आप ऑटोनोमस बॉडी में जा रहे हो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की लोकल बॉडी, ठीक है, कि ऑटोनोमस बॉडी आप जा रहे हो टेम्पोररी पीरियड के लिए, मगर आपका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वहां पर जो अथॉरिटी आपको अपॉइंटमेंट दिया है वही आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहेगा। ठीक है। शॉर्ट में द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज द सीनियर मोस्ट अथॉरिटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज द सीनियर मोस्ट अथॉरिटी हैविंग द पावर टू अपॉइंट द एम्प्लॉई टू हिज करेंट सर्विस ग्रेड और पोस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीनियर मोस्ट अथॉरिटी है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज द हाईएस्ट अथॉरिटी और सीनियर मोस्ट अथॉरिटी, okay, who has power to give appointment on the basis of grade, post, okay, service, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऊपर डेफिनेशन आ सकता है। नेक्स्ट वन आप देखिए कैडर अथॉरिटी। ठीक है, इट इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। डेफिनेशन कैडर अथॉरिटी का, इट इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स लाइक अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग and maintenance of records of the officers belonging to specific cadre, organized groups of post। तो उसमें कैडर अथॉरिटी में क्या है, जैसे आपको कुछ एग्जांपल में देता हूं। सपोज एग्जांपल देता हूं, स्टेट सिविल सर्विसेज। स्टेट सिविल सर्विसेज में जो कैडर अथॉरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, आपका कैडर अथॉरिटी कौन है, स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। स्टेट सिविल सर्विसेज में जो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम करता है, नहीं कि, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट कैडर अथॉरिटी है, जाके उसके पास पावर है, अपॉइंटमेंट वो देगा, प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग, मेंटेनेंस, एवरीथिंग। सिमिलरली आप देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज में जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है कि इंडियन पुलिस सर्विस है, इसमें कैडर अथॉरिटी है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग कैडर अथॉरिटी है। क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जो सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो हाईएस्ट पोस्ट होता है, जो इसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन सपोज पुलिस सर्विस, इसमें जो कैडर अथॉरिटी है वो डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। बिकॉज डीओपीटी का पावर है, वो अपॉइंटमेंट देगा, वो प्रमोशन देगा, वो ट्रांसफर करेगा, ठीक है, वो ऑफिसर का रिकॉर्ड मेंटेनेंस करेगा। ठीक है। सिमिलरली सपोज और एक एग्जांपल में देता हूं, जैसे एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें जो भी एम्प्लॉइज है उनका कैडर अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, उनका कैडर अथॉरिटी है। तो कैडर अथॉरिटी क्या है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जिसके जो रेस्पॉन्सिबल है किस मैटर में ना, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर,
पोस्टिंग, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द कंसर्न ऑफिसर, ठीक है, टू ए स्पेसिफिक कैडर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल मैं अभी बता चुका हूं, जैसे फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एक्ट्स एज द कैडर अथॉरिटी। ओके, तो कैडर अथॉरिटी है डीओपीटी, वो बेसिकली अपॉइंटमेंट देगा, प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑफिसर्स उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिमिलरली स्टेट सिविल सर्विस, एवरी स्टेट गवर्नमेंट में पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट करता है, ठीक है, तो वहां पर जो कैडर अथॉरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट है। तो कैडर अथॉरिटी मीन्स एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, ठीक है, जो मैटर्स क्या है, अपॉइंटमेंट है कि ट्रांसफर है कि प्रमोशन है कि पोस्टिंग है कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द ऑफिसर्स, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास है। मैं कुछ एग्जांपल भी आपको दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेंट्रल सिविल सर्विस एंड सेंट्रल सिविल पोस्ट, ये दोनों के बीच में सपोज डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपको डिफरेंस आ सकता है, और वाइवा में आपको पूछ सकते हैं कि सेंट्रल सिविल सर्विस क्या है एंड सेंट्रल सिविल पोस्ट क्या है, इंक्लूड्स ए सिविलियन सर्विस और सिविलियन पोस्ट एज द केस में बी ऑफ द करेस्पॉन्डिंग ग्रुप इन द डिफेंस सर्विसेज। ओके, तो सेंट्रल सिविल सर्विस एंड सेंट्रल सिविल पोस्ट को मैं थोड़ा बता देता हूं। जो सेंट्रल सिविल सर्विस है, आप देखा होगा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, ओके, कि और कुछ एग्जांपल, इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS, आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम देना है, मगर उसमें आपका जब लोअर रैंक रहेगा आपको IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस मींस ओनली यूनियन में काम करना है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करना है, स्टेट गवर्नमेंट में आप काम नहीं करोगे। ऑल इंडिया सर्विसेज में IAS IPS वो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में, ठीक है, उनको रिक्रूटमेंट मिलता है, मगर वो बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, तो इसीलिए वो ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं। मगर जो सेंट्रल सिविल सर्विस है ओनली यूनियन गवर्नमेंट में काम करना है। जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, जो आप टैक्सेशन, जो टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस की, इंडियन पोस्टल सर्विस, ठीक है, कि आपका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ठीक है, ये सब क्या है, ओनली यूनियन गवर्नमेंट में काम करना है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करना है, ठीक है, क्लियर। वो सेंट्रल सिविल सर्विस होता है। और सेंट्रल सिविल पोस्ट क्या है, जैसे पोस्ट है, ग्रुप ए पोस्ट, ग्रुप बी पोस्ट, सपोज ग्रुप बी पोस्ट में कोई सेक्शन ऑफिसर है, कोई सेक्शन ऑफिसर वो ग्रुप बी पोस्ट में काम कर रहा है, वो एक्चुअली सेंट्रल सिविल सर्विस में नहीं आएगा, वो सेंट्रल सिविल पोस्ट में आएगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है, मगर वो सेक्शन ऑफिसर सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है ग्रुप बी पोस्ट में, वो पोस्ट में आएगा, वो सर्विस में नहीं आएगा। सर्विस में आएगा तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में बताया कि इंडियन पोस्टल सर्विस, वो जो ओनली सेंट्रल सिविल सर्विस से आते हैं और वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं। आपको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ठीक है। मगर यहां पर एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि IRS की सपोज इंडियन पोस्टल सर्विस, ये तो वही सिविल सर्विस एग्जाम में होता है। सिविल सर्विस एग्जाम में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, सपोज इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, बहुत कुछ है कि नहीं। तो जो सेंट्रल सिविल सर्विस एग्जाम है, मगर आपको मैं बता देता हूं जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, वो ये सब ऑल इंडिया सर्विसेज है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, ठीक है। तो इट मींस बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में काम करेंगे, सेम एग्जाम है, सिविल सर्विसेज एग्जाम है। जो लोअर रैंक आएगा वो IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट सर्विस, ठीक है, मगर ओनली वो यूनियन गवर्नमेंट में काम करेंगे। मगर ऑल इंडिया सर्विस जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, ये बोथ यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में काम करेंगे, तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज में आता है, क्लियर। मगर यहां पर जो सेंट्रल सिविल सर्विस मींस ओनली यूनियन गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करेंगे। सिमिलरली सिविल, तो अभी एक डिफरेंस में बता रहा था आपको, जैसे सेंट्रल सिविल सर्विस तो हो गया, सेंट्रल सिविल पोस्ट जो है, जैसे सेक्शन ऑफिसर है कि कोई स्टेनोग्राफर है, ये सब पर्टिकुलर पोस्ट में काम करते हैं, पर्टिकुलर पोजीशन में काम करते हैं,
ओके, जैसे ग्रुप बी पोस्ट में बताया, ये वो सर्विस में सेंट्रल सिविल सर्विस में नहीं है, वो सेंट्रल सिविल पोस्ट में आएगा क्योंकि वो स्पेसिफिक पोजीशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। कमीशन मींस वो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और आपको मैं बताया था ये जो रूल है जो डिफेंस सर्विसेज है, बेसिकली डिफेंस सर्विसेज जो सिविलियन एम्प्लॉइज है, सिविलियन एम्प्लॉइज मींस वो वार में नहीं जाएंगे, वो सिविलियन एम्प्लॉइज, वो जो अकाउंटेंट है, क्लर्क है, वो सिविलियन एम्प्लॉइज है। ठीक है, वो उनके लिए एक्चुअली ये सीसीए रूल्स 1965 लागू है, जो सिविलियन डिफेंस सर्विसेज सिविलियन एम्प्लॉइज, आपको याद रखना है, सिविलियन एम्प्लॉइज जो बेसिकली अकाउंटेंट क्लरिकल पोस्ट में काम करते हैं। ठीक है, तो मीन सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड पेड आउट ऑफ द डिफेंस सर्विसेज एस्टिमेट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट 1950 की, द नेवी एक्ट 1957 की, एंड द एयरफोर्स एक्ट 1950। ओके, इसमें नहीं आएगा। उनको जो पेमेंट होता है वो डिफेंस सर्विसेज एस्टिमेट से आता है और बेसिकली वो सिविलियन एम्प्लॉइज है। ओके, तो उनके लिए वो सीसीए रूल्स 1965 लागू है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक्चुअली गेजेट नोटिफिकेशन ऑनरेबल प्रेसिडेंट करते हैं कि ये स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है। कोई भी स्पेसिफिक, सपोज एक नया डिपार्टमेंट अभी आएगा, उसका एक गेजेट नोटिफिकेशन कौन करेंगे? ऑनरेबल प्रेसिडेंट करेंगे। ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास ही पावर है, वो गेजेट नोटिफिकेशन में डिक्लेयर करेंगे कि ये स्पेसिफिक डिपार्टमेंट अब इनिशिएट हुआ और उसका काम यही है, और इस तरीका का वो सर्विस पब्लिक को देगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स एनी एस्टेब्लिशमेंट और ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट। कैसे डिक्लेयर करेंगे ना? बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देंगे। ठीक है, टू बी ए डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअली उसको डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू ए गेजेट नोटिफिकेशन। ओके, और उसमें भी क्लैरिफाई करेंगे कि डिपार्टमेंट का रोल क्या है, व्हाट टाइप ऑफ सर्विस एक्चुअली प्रोवाइडिंग बाय दिस डिपार्टमेंट टू द पब्लिक। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जो डिक्लेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है उसका डेफिनेशन में एक सेंटेंस है कि जिसके पास एक्चुअली पावर है वो कुछ पेनाल्टीज इंपोज कर सकता है। जैसे जो सीसीएस, ये रूल्स देखिए, सीसीए रूल्स 1965 में आप जो पेनाल्टीज है, माइनर पेनाल्टीज, मेजर पेनाल्टीज, रूल 11 देखिए, इसमें ये जो रूल 11 में जो माइनर पेनाल्टीज, मेजर पेनाल्टीज है, उसको कौन इंपोज करेगा? तो उसका जो अथॉरिटी, जिसके पास पावर है, वो रूल 11, ओके, रूल ऑन द बेसिस ऑफ रूल 11 पेनाल्टीज एक्चुअली इंपोज, ओके, बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑन द चार्ज ऑफिसर if actually the charge is justified ultimately. So disciplinary authority means the authority competent under these rules to impose on a government servant any of the penalties specified in rule 11. तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वही है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, सभी समय जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। कभी कभी ये हमारा मन में आता है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कभी, सभी समय एक्चुअली अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं है। मे नॉट बी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी मे नॉट बी ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो मैं यहां पर लिख दिया, यहां पर आरो मार्क, मे नॉट। ठीक है, क्लियर? तो इसमें क्या है, सपोज एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। ठीक है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मगर वो डेलीगेशन ऑफ पावर दिया है, एक लोअर अथॉरिटी को डेलीगेशन ऑफ पावर दिया है पेनल्टी इंपोज करने के लिए। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो गए, मगर डेलीगेशन ऑफ पावर, जो पेनल्टी इंपोज करने का डेलीगेशन ऑफ पावर एक लोअर अथॉरिटी को दिया गया है। समझ में आया कि नहीं? तो ये नहीं मानना कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सभी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी सभी समय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ आपका पोस्ट के हिसाब से, कुछ पोस्ट ऐसा है जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट इज द बेसिकली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द जनरल एंड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ऑर्डर, जनरल एंड स्पेसिफिक ऑर्डर। उसमें क्या है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं,
कोई अथॉरिटी को, जो ऑन बिहाफ ऑफ हिम एक्चुअली कि और एक्चुअली ऑन बिहाफ ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट द अथॉरिटी इंपोज पेनल्टी, मगर वो जो अथॉरिटी को कौन चूज करेंगे? ऑनरेबल प्रेसिडेंट चूज करेंगे। तो पोस्ट के हिसाब से है। और सभी समय ये माइंड में मत रखना कि सभी समय अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी मे नॉट बी ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। आपको एग्जांपल भी दिया, एग्जांपल है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी, सपोज फॉर एग्जांपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, मगर वो डेलीगेशन ऑफ पावर दिया है एक लोअर अथॉरिटी को पेनल्टी इंपोज करने के लिए, तो उस केस में तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं हुआ। ठीक है, तो आगे में भी रूल 12 जब डिस्कस करेंगे उस समय और क्लैरिफाई करेंगे, मगर यहां पर आपको याद रखना है कि ऑलवेज अपॉइंटिंग अथॉरिटी मे नॉट बी ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आया? तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा आपको कि डिफाइन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसके पास पावर है, कोई भी पेनाल्टीज इंपोज कर सकता है अंडर रूल 11 ऑफ द सीसीए रूल्स 1965। ठीक है, चलो यहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट को डिफाइन करेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट मींस ए पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ ए सर्विस, who is a member of a service or holds a civil post under the union and includes any such person on foreign service or whose services are temporarily placed at the disposal of a state government or a local or other authority। देखिए यहां पर इंटरेस्टिंग है, यहां पर दिया है फर्स्ट पॉइंट जो है मीन्स ए पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ सर्विस और होल्ड से एक पोस्ट होल्ड किया है यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट में, यूनियन में, और उसमें इंक्लूड करना है कभी कभी क्या है कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई ऑटोनोमस बॉडी का एम्प्लॉय, कोई लोकल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, वो फॉरेन सर्विस में जाकर अभी यूनियन गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं टेम्पोररी पीरियड के लिए। ओके, तो उनको भी हम गवर्नमेंट सर्वेंट में लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सीसीए रूल्स 1965। कभी कभी क्या है एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो फॉरेन सर्विस में जाकर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है, कोई लोकल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय वो अभी फॉरेन सर्विस में जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है, कोई ऑटोनोमस बॉडी का एम्प्लॉय वो अभी टेम्पररी पीरियड के लिए फॉरेन सर्विस में जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एम्प्लॉय वो टेम्पररी पीरियड के लिए फॉरेन सर्विस में जाकर वो भी यूनियन गवर्नमेंट में काम कर रहा है, तो वो भी आएगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, इज ए मेंबर ऑफ ए सर्विस और होल्ड्स ए सिविल पोस्ट अंडर ए स्टेट गवर्नमेंट and whose services are temporarily placed at the disposal of the central government। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट को और एक क्लैरिफाई कर देता हूं। जैसे आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, आप एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट में आप एक सीजी एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो, ठीक है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप फॉरेन सर्विस में टेम्पोररी पीरियड के लिए फॉरेन सर्विस में जाकर अभी ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हो, जाकर अभी फॉरेन सर्विस में जाकर अभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हो टेम्पररी पीरियड के लिए, कोई लोकल बॉडी में काम कर रहे हो, मगर आप एक्चुअली आपका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मगर अभी आप टेम्पररी पीरियड के लिए आप जाकर ऑटोनोमस बॉडी में कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कि लोकल बॉडी में काम कर रहे हो फॉरेन सर्विस में। ठीक है, वो टेम्पररी पीरियड है, मगर आपका पेरेंट डिपार्टमेंट तो आप तो यूनियन में काम कर रहे हो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सेकंड, जो फर्स्ट में मैं गलती में बताया था, सेकंड में क्या है, यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कि लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई ऑटोनोमस बॉडी का एम्प्लॉय, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एम्प्लॉय, वो टेम्पररी पीरियड के लिए जाकर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है फॉरेन सर्विस में, वो एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अभी वो जाकर काम कर रहा है डेपुटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट में, कि कोई लोकल बॉडी का एम्प्लॉय है वो भी फॉरेन सर्विस में जाकर यूनियन गवर्नमेंट में काम कर रहा है टेम्पररी पीरियड के लिए, कोई ऑटोनोमस बॉडी का एम्प्लॉय है वो भी डेपुटेशन में जाकर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है टेम्पररी पीरियड के लिए, तो वो भी हो जाएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट में इंक्लूड होगा। सिमिलरली इज इन द सर्विस ऑफ ए लोकल और अदर अथॉरिटी एंड हुज सर्विसेज आर टेम्पररली प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और थर्ड पॉइंट वही है, ऐसा कोई लोकल गवर्नमेंट में काम कर रहा है, कोई अथॉरिटी लोकल गवर्नमेंट में काम कर रहा है, मगर अभी डेपुटेशन में कि फॉरेन सर्विस में वो टेम्पररी पीरियड के लिए जाकर अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है, वो भी आ जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एक हेड ऑफ द ऑफिस। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक्चुअली जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या है, आप ये देखिए मैं अंडरलाइन कर दिया था, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंटरी रूल्स में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को डिफाइन किया गया है, ठीक है। फंडामेंटल एंड सप्लीमेंटरी रूल्स, नॉट जनरल फाइनेंशियल रूल में जो डिफाइन किया है वो हेड ऑफ द ऑफिस है, मगर जो FRSR रूल्स में जो अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इसको याद रखना है। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मीन्स द ऑफिसर who is officially declared as such under the fundamental and supplementary rules or the civil service regulations, who is officially declared under FR and SR, okay, वही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो he is the authority, obviously he is the authority who for that department has the powers to act as the appointing, disciplinary, appellate, reviewing authority for government servants, ठीक है। तो आपको जब डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में क्या है, जो ऑफिसर उसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है अंडर FR एंड SR रूल, और उसके पास पावर है डिपार्टमेंट में, उसका पावर है अपॉइंटमेंट देने के लिए पावर है, कोई सपोज ऑफिसर के ऊपर चार्ज लगा है तो उस वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के हिसाब से वो पेनल्टी इंपोज कर सकता है, वो अपेलेट अथॉरिटी है, वो अपील सुनने के लिए है, रिव्यूइंग अथॉरिटी है, यदि सपोज आपके ऊपर कुछ पेनल्टी लगा तो आप अपील कर सकते हो, और उसको यदि कुछ पेनल्टी लगा उसको रिव्यू भी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर यहां पर एक क्वेश्चन आता है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में जो ऑफिशियली डिक्लेयर होता है वो किस रूल के अंडर में है, वो FRSR में है। शॉर्ट में एक आप देख लीजिए एक शॉर्ट डेफिनेशन, इट रिफर्स टू द ऑफिशियली डेजिग्नेटेड चीफ ऑफिसर ऑफ ए डिपार्टमेंट हु एक्सरसाइजेस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स लाइक अपॉइंटमेंट एंड डिसिप्लिनरी कंट्रोल एज डिफाइंड इन गवर्नमेंट रूल्स। वही तो वो है चीफ ऑफिसर है, वो एक्चुअली कंसर्न डिपार्टमेंट का हाईएस्ट अथॉरिटी है, और उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है अपॉइंटमेंट देने के लिए, ओके, और डिसिप्लिनरी कंट्रोल, ठीक है, और वो अपेलेट अथॉरिटी हो सकता है, वो रिव्यूइंग अथॉरिटी है, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भाई आ जाएगा हेड ऑफ द ऑफिस। तो कभी कभी क्या है, आप सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो डिफरेंस आ सकता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द ऑफिस। हेड ऑफ द ऑफिस जो है वो ऑफिस का जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो ऑफिस का, तो ये एक्चुअली GFR जनरल फाइनेंशियल रूल इसको डिक्लेयर किया है, द ऑफिसर हु इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज सच अंडर द GFR जनरल फाइनेंशियल रूल में। तो याद रखिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो ऑफिशियली द ऑफिसर हु इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय द FR एंड SR रूल, मगर यहां पर द ऑफिसर हु इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अंडर GFR। तो अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ऑफिस कैसे डे टू डे फंक्शन कर रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऑफिस में पर्टिकुलर ऑफिस में वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, पर्टिकुलर ऑफिस में वो अपील सुन सकता है, वो रिव्यूइंग अथॉरिटी है, मगर पर्टिकुलर ऑफिस में तो ही इज द अथॉरिटी responsible for managing the day-to-day administration of an office and for exercising powers like appointment, disciplinary action, appeal or review within that office। तो उसमें दो चीज, जो हेड ऑफ द ऑफिस है उसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया है GFR जनरल फाइनेंशियल रूल, एंड ही इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ओके, टू ओवरसी द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द ऑफिस, and also in office also he take it means disciplinary action, and also he has power to give an appointment, and also he listen appeal, and also in office also he is the reviewing authority, ठीक है। मगर इसमें क्वेश्चन आता है, इसको डिक्लेयर किया है GFR डिक्लेयर किया है हेड ऑफ द ऑफिस को, और शॉर्ट में इट रिफर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एन ऑफिस हु इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द GFR as having administrative and financial control, ओके। ऑफिस में जो जिस अथॉरिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल कंट्रोल है वही ऑफिसर को हम हेड ऑफ द ऑफिस बोलेंगे, ठीक है, और उसको डिफाइन किया है जनरल फाइनेंशियल रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट शेड्यूल जो है, शेड्यूल मींस द शेड्यूल टू दीज रूल्स, ठीक है। शेड्यूल में इसमें एक्चुअली जो CCA रूल्स 1965 है, इसमें 5 पार्ट्स है, शेड्यूल में 5 पार्ट्स है, इसको भी थोड़ा आप याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। सेक्रेटरी को डिफाइन किया गया है, सेक्रेटरी मींस द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इन एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965, ए स्पेशल सेक्रेटरी और एन एडिशनल सेक्रेटरी, देन जॉइंट सेक्रेटरी। इसमें पोजीशन देखिए, फर्स्ट है स्पेशल सेक्रेटरी और एन एडिशनल सेक्रेटरी, देन उसके बाद आएगा जॉइंट सेक्रेटरी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हु इज इन अपर पोस्ट, जॉइंट सेक्रेटरी ना एडिशनल सेक्रेटरी? एक्चुअली एडिशनल सेक्रेटरी। जैसे स्पेशल सेक्रेटरी और एन एडिशनल सेक्रेटरी, देन जॉइंट सेक्रेटरी, प्लेस्ड इन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट in relation to the cabinet secretariat, the secretary to the cabinet. In relation to the president secretariat, the secretary to the president, or as the case may be, the military secretary to the president. In relation to the prime minister's secretariat, the secretary to the prime minister. So ठीक है, ये सब सेक्रेटरी रिलेटेड है, मगर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो एडिशनल सेक्रेटरी है उसका जो पोस्ट है इट इज हायर देन द जॉइंट सेक्रेटरी। ठीक है, सर्विस को डिफाइन किया, सर्विस मींस ए सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन। यहां पर जो सर्विस आप काम करोगे ओनली यूनियन गवर्नमेंट में, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं आएगा, ओनली यूनियन गवर्नमेंट में जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और उनका जो सर्विस है इसमें इंक्लूड है। ओके, सीसीए रूल्स 1965 उनको ही कवर किया है। ठीक है, ये रूल 2 था। रूल 3 में देखेंगे एप्लीकेबल। ये जो रूल है किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बताया था जो एप्लीकेबल है बेसिकली सिविलियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन यूनियन गवर्नमेंट ओनली, बस सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, और इसमें सिविलियन एम्प्लॉइज है डिफेंस सर्विसेज में, जो अकाउंटेंट है, क्लर्क है, डिफेंस सर्विसेज में वो भी आता है। तो इसमें याद रखना है जो भी सिविलियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन यूनियन और डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस डिपार्टमेंट में जो सिविलियन एम्प्लॉइज है, जो अकाउंटेंट, क्लर्क, ये सब काम कर रहे हैं, वो भी इसमें आएंगे। अच्छा, ये जो रूल है किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? रेलवे एम्प्लॉइज के लिए नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट वन, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज मींस क्या है? वो दोनों में, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में काम करेंगे। अब देखिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस की, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये सब जो है ना ऑल इंडिया सर्विसेज, इनके लिए, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए एक रूल है, सीसीए रूल्स 1954 है, ये 1965 है। ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए उनका जो रूल है वो ईयर जो है 1954 है। ठीक है, तो ये इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि ये सब जो है ना ये बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं। कैजुअल वर्कर्स, टेम्पोररी नॉट रेगुलर स्टाफ, और जो पर्सन्स हु कैन बी डिस्चार्ज विद लेस देन 1 month नोटिस, लेस देन 1 month नोटिस देकर जिसको डिस्चार्ज किया जाता है उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। और पर्सन्स हु आर कवर्ड बाय स्पेशल लॉज और एग्रीमेंट्स अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये सब के लिए क्या है, ये सीसीए रूल्स 1965 एप्लीकेबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे या ऑल इंडिया सर्विसेज की कैजुअल वर्कर्स, और जिस पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया गया लेस देन 1 month नोटिस, और जिसके लिए स्पेशल लॉज और एग्रीमेंट्स इसको अप्रूव किया है ऑनरेबल प्रेसिडेंट, तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, एप्लीकेबल किसके लिए है ना? जो सिविलियन एम्प्लॉइज है वो यूनियन गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, और उसमें इंक्लूडेड है जो डिफेंस सर्विस है, डिफेंस डिपार्टमेंट में जो सिविलियन एम्प्लॉइज है काम कर रहे हैं, वो भी, उनके लिए भी सीसीए रूल्स 1965 एप्लीकेबल है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। यदि कुछ डाउट अराइज होता है, सपोज वेदर दीज रूल्स अप्लाई टू ए पर्सन, क्या ये एम्प्लॉय के लिए रूल एप्लीकेबल होगा कि नहीं, कि टू व्हिच सर्विस द पर्सन बिलोंग्स, तो ये कोई डाउट क्लैरिफिकेशन बात आता है तो वो मैटर ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिसीजन लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ही डिसीजन लेंगे यदि कोई भी क्लैरिफिकेशंस, कोई भी डाउट्स है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, रूल 4 जो क्लासिफिकेशन सर्विसेज, द सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन शैल बी क्लासिफाइड। तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप बी, सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप सी, सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप डी। तो ये सब सर्विसेज में आता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ठीक है, ये एक है सेंट्रल सिविल, ये है सेंट्रल सिविल सर्विसेज। सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक सेंट्रल सिविल पोस्ट है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्या है? जैसे सेंट्रल में आपको बताया था, सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो डिफरेंट ग्रुप्स है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो पोस्ट अलग है, सर्विसेज अलग है। ठीक है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज में क्यों बोलता हूं,
उसमें सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ठीक है, कि आपका इंडियन पोस्टल सर्विस, ये सब यूनियन, ओनली यूनियन गवर्नमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो 4 ग्रुप्स है, ये रूल 4 है। रूल 5 में शेड्यूल रिलेटेड, तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी shall consist of the services and grades of services specified in the schedule। ये जो रेड में लिखा स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, जो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज है वो किसमें स्पेसिफाई है, शेड्यूल में स्पेसिफाई है, ठीक है। ये रूल 5 है। रूल 6 क्या है, ये पोस्ट आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट। ग्रुप ए हाईएस्ट लेवल पोस्ट, सीनियर ऑफिसर्स, डिसीजन मेकिंग रूल्स। ग्रुप बी मिडिल लेवल सुपरवाइजरी पोस्ट। ग्रुप सी क्लरिकल एंड टेक्निकल सपोर्टिंग पोस्ट। ग्रुप डी बेसिक लेवल और मैनुअल स्टाफ, नाउ मोस्टली मर्ज्ड इनटू ग्रुप सी आफ्टर 2008। तो ये सिविलियन पोस्ट है, वो स्पेसिफिक पोजीशन में काम करते हैं, ये रूल 6 है। तो रूल 4 है वो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज है, रूल 6 जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट है, ठीक है। 6A में चार्ज ऑफ टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दिया गया। पहले था क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, मगर उसको कन्वर्ट कर दिया गया। देखिए, क्लास 1 ग्रुप ए, क्लास 2 ग्रुप बी, क्लास 3 ग्रुप सी, क्लास 4 ग्रुप डी। अभी क्लास हम यूज नहीं करेंगे, अभी ग्रुप यूज करेंगे, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दिया गया, तो इसलिए रूल 6A को ऐड कर दिया गया, ठीक है। 7 में क्या है, जनरल सेंट्रल सर्विस। जनरल सेंट्रल सर्विस किसको बोलते हैं, जैसे मैं बताया कि आपका ये जो है इंडियन, ओनली यूनियन गवर्नमेंट में काम करते हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस है कि सपोज इंडियन, आई ओनली लिख दिया, इंडियन पोस्टल सर्विस है, ठीक है, कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, कि इंडियन सेक्रेटरिएट सर्विस है, ठीक है। तो ये सब जो है ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज है। ये जो मैं बोला कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ओनली यूनियन इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ठीक है, ये सब सेंट्रल सिविल सर्विसेज है। मगर यहां पर एक जो पोस्ट है, बेसिकली ओनली सिविल पोस्ट, जैसे ग्रुप बी, एक ग्रुप बी एम्प्लॉय, एक बोलते हैं एसओ सेक्शन ऑफिसर, की ऑफिस सुपरिटेंडेंट, कि एक स्टेनोग्राफर, एक पर्टिकुलर पोजीशन में काम करते हैं, ठीक है। ये सब पोस्ट है। ये सेंट्रल जो सेंट्रल सिविल पोस्ट है वही है जनरल सेंट्रल सर्विस। मगर जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज में आपका आ जाता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन सेक्रेटरिएट सर्विस, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्लियरली देख लीजिए, if a central civil post belongs to any group A, B, C or D but is not part of any specific central civil service like Indian Revenue Service, ki Indian Audit and Account Service, ki Central Secretariat Service etc, then it will be treated as, इसको बोलते हैं जनरल सेंट्रल सर्विस। ये जो पर्टिकुलर ग्रुप गोटे पर्टिकुलर पोजीशन में काम करते हैं उनको जनरल सेंट्रल सर्विस। मगर वो जो ये सब है, IRS है, कि जैसे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, कि सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विस है, तो वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज में आता है। मगर जो सिविल पोस्ट है उसको हम बोलेंगे जनरल सेंट्रल सर्विस, ठीक है। सेंट्रल सिविल पोस्ट, जो जनरल सेंट्रल सर्विस है, इसको बोलते हैं कि सेंट्रल सिविल पोस्ट, सेंट्रल सिविल पोस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया है, देखिए, इफ समवन होल्ड्स ए ग्रुप बी पोस्ट, ओके, आप देखिए यहां पर दिया है क्लियरली, इफ समवन होल्ड्स ए ग्रुप बी पोस्ट दैट डज नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर सर्विस, पर्टिकुलर सर्विस मीन सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस, इंडियन ऑडिट, इसमें पर्टिकुलर सर्विस से नहीं आता है, देन दिस पोस्ट इज कंसिडर्ड एज सेंट्रल सिविल पोस्ट, उसी को बोलेंगे जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी। मगर जब जो आता है कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज CCS, वो बेसिकली इंडियन रेवेन्यू सर्विस की, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन सेक्रेटरिएट सर्विस, ये सब आ जाता है, जो पर्टिकुलरली यूनियन गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में है। ऑल इंडिया सर्विसेज को नहीं लेना है। ऑल इंडिया सर्विसेज में जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ये सब क्या हो जाता है,
ना, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं। ठीक है, तो ये 7 रूल्स था। अभी हम एमसीक्यूज देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है। द सेंट्रल सिविल सर्विसेज सीसीए रूल्स केम इन टू फोर्स में बताया था 1 दिसंबर 1965, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, अपॉइंटिंग अथॉरिटी in relation to a government servant means the authority who conducts disciplinary proceedings, the authority empowered to make appointments to the service grade or post held by the employee, the authority which grants leave, none of these। देखिए appointing authority, option B is the correct answer। the authority empowered to make appointments to the service grade or post held by the employee, option B is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां पर दिया है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। 4 statements given, which of the following are not covered under CCA rules? Members of the all India services covered नहीं है। casual employees covered नहीं है। employees discharged with less than 1 month service नहीं है। रेलवे सर्वेंट्स नहीं है, ये कवर नहीं है। अभी मैं बताया था ओके कि बेसिकली दोज एम्प्लॉइज आर नॉट कवर्ड अंडर सीसीए रूल्स 1965। अब रूल 3 देख लीजिए, उसमें क्लियरली दिया है कि किस एम्प्लॉइज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, तो ये चारों के लिए नहीं है। तो करेक्ट आंसर 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पैटर्न अभी आ रहा है, लेटेस्ट पैटर्न है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, who has the power to exclude any group of government servants from the operation of these। अच्छा, ये रूल से who is the authority, किसके पास पावर है कि वो एक ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को एक्सक्लूड कर सकता है ये रूल्स को अवेल करने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंटल हेड, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके पास पावर है, वो एक ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं कि इनके लिए रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, सीसीए रूल्स 1965 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज टेम्पररली ट्रांसफर्ड टू ए, अच्छा टेम्पररी, आपका ओरिजिनल डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट है, मगर आप टेम्पररली फॉरेन सर्विस में कि डेपुटेशन में आप स्टेट गवर्नमेंट में चले गए, आप फॉरेन सर्विस में ऑटोनोमस बॉडी को चले गए, आप फॉरेन सर्विस में लोकल बॉडी को चले गए, आप फॉरेन सर्विस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को चले गए, मगर आपका पेरेंट डिपार्टमेंट क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो आपके लिए तो एप्लीकेबल होगा। नो लॉन्गर अप्लाई ओनली इफ यूपीएससी परमिट्स, अप्लाई ओनली विथ मिनिस्ट्रीज अप्रूवल, कंटिन्यू टू अप्लाई। आप टेम्पररी पीरियड के लिए फॉरेन सर्विस में आप स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल बॉडी को, ऑटोनोमस बॉडी को आप टेम्पररी पीरियड के लिए चला गया, कि डेपुटेशन में आप टेम्पररी पीरियड के लिए स्टेट गवर्नमेंट में चला गया, टेम्पररी पीरियड के लिए, मगर आपका ओरिजिनल डिपार्टमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो ये कंटिन्यू टू अप्लाई, ये रूल अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। अब मैं बताया था द सिविल सर्विसेज, आप रूल 4 देखिए, आप रूल 4 देखिए, इसमें 4 ग्रुप्स है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रुप ए, बी, सी एंड डी सर्विसेज इज स्पेसिफाइड इन। जो ग्रुप ए, बी, सी एंड डी का उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस में स्पेसिफाई किया गया है, शेड्यूल, रूल 3, फंडामेंटल रूल्स, कंडक्ट रूल्स, ऑप्शन ए द शेड्यूल। आप देखिए रूल 5 देखिए, रूल 5 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ए सेंट्रल सिविल पोस्ट नॉट इंक्लूडेड इन एनी स्पेसिफिक सर्विस शैल बी डीम्ड टू बिलोंग टू इंडियन सिविल सर्विस, जनरल सेंट्रल सर्विस, डिफेंस सिविल सर्विस, नॉन ऑफ दीज। जनरल सेंट्रल सर्विस आपको अभी रूल 7 में बताया था, रूल 7 में जैसे सेंट्रल सिविल पोस्ट, जो सेंट्रल सिविल पोस्ट है उसको हम जनरल सेंट्रल सर्विस बोलेंगे। एक सेंट्रल सिविल सर्विसेज है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज आईआरएस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन सेक्रेटरीट सर्विस, ये सब सेंट्रल सिविल सर्विसेज है, मगर सिविल पोस्ट है। आप ग्रुप बी में, सपोज ग्रुप ए में एक सीनियर पोस्ट में काम, एक पर्टिकुलर पोजीशन में काम कर रहे हो, वो आप सेंट्रल सिविल पोस्ट में आ रहे हो, तो सेंट्रल सिविल पोस्ट में आ रहे हो मींस वो जनरल सेंट्रल सर्विस है।
मगर एक सेंट्रल सिविल सर्विसेज है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्या है? जैसे आईआरएस है, वो सिविल सर्विस एग्जाम देता है, सीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में क्वालिफाई करता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो लोअर रैंक रहता है। मगर आप बोलेंगे इसी में तो हायर रैंक जो आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, वो तो नहीं आता है। अरे वो बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में काम करेंगे, मगर आईआरएस ओनली यूनियन गवर्नमेंट में काम करेगा। वही सेम एग्जाम है मगर ओनली यूनियन गवर्नमेंट में, और इसका सर्विस है, पर्टिकुलर सर्विस है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज। कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, सेम सिविल सर्विसेज एग्जाम जो लोअर रैंक है उनको मिलता है, मगर ओनली वो यूनियन गवर्नमेंट में काम करते हैं। ठीक है। और जो पर्टिकुलर पोस्ट में काम करते हैं वो सेंट्रल सिविल पोस्ट होता है, उसको अल्टरनेटिवली कहा जाता है जनरल सेंट्रल सर्विस। तो यहां पर जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 9 में देखिए करेक्ट स्टेटमेंट्स, इसमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन, आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करना है। तो सीसीए रूल्स 1965 अप्लाई टू ऑल रेलवे सर्वेंट्स, रेलवे सर्वेंट्स के लिए रूल एप्लीकेबल नहीं है। द प्रेसिडेंट कैन एक्सक्लूड एनी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम दीज रूल्स। यस, ऑनरेबल प्रेसिडेंट का पावर है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट का पावर है, वो कोई भी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज को एक्सक्लूड कर सकते हैं, कि वो बोल सकते हैं कि ये रूल उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, वो करेक्ट है। क्लास 1 एंड ग्रुप ए आर द सेम, ये भी करेक्ट है। इसको एक रूल 6A में जो क्लास 1 क्लास 2 था वो ग्रुप ए ग्रुप बी तो सेम है। जनरल सेंट्रल सर्विस कवर्स पोस्ट नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर सर्विस, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा है 2, 3, 4 जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहां पर भी 2 स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, व्हिच इज करेक्ट? अपॉइंटिंग अथॉरिटी मींस द लोएस्ट अथॉरिटी दैट कैन अपॉइंट एन एम्प्लॉय, लोएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी, ये रॉन्ग है स्टेटमेंट। अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑलवेज द हाईएस्ट अथॉरिटी, ओके, हैज द पावर टू गिव अपॉइंटमेंट, ओके, ऑफ एन एम्प्लॉय, तो ये करेक्ट है, लोएस्ट दिया है। द प्रेसिडेंट डिसाइड्स ऑल डाउट्स रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज रूल्स, ये जो सीसीए रूल्स 1965 में कोई डाउट होता है, कोई क्लैरिफिकेशन होता है, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो डाउट को वो क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो सेकेंड वन करेक्ट है। ठीक है, तो ओनली 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी 2 स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1, रूल 4 डील्स विथ क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, नहीं गलत है, रूल 4 क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, रूल 6 डील्स विथ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, ये गलत है, ये अल्टरनेट हो गया। रूल 4 क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, रूल 6 क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट। ठीक है, अभी क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो दोनों स्टेटमेंट एक्चुअली इनकरेक्ट है, ओके, तो बोथ इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहां पर भी 2 स्टेटमेंट्स है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करना है। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू मेक अपॉइंटमेंट्स टू ए सर्विस, ग्रेड और पोस्ट, फर्स्ट तो करेक्ट है। वेयर मोर देन वन अथॉरिटी एग्जिस्ट, द लोएस्ट अथॉरिटी इज ट्रीटेड एज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, द हाईएस्ट अथॉरिटी, लोएस्ट नहीं, ये गलत है, द हाईएस्ट अथॉरिटी इज ट्रीटेड एज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो उसमें करेक्ट स्टेटमेंट ओनली 1 ओनली, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं जब मैं ईच रूल को एक्सप्लेन किया, रूल 1 टू रूल 7। क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर भी 2 स्टेटमेंट्स है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज ऑलवेज द सेम एज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, गलत है। ये नहीं है कि सभी समय में बताया था, क्लैरिफाई किया था, सभी समय आपका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, नो, ये गलत है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इंपोज पेनल्टीज अंडर रूल 11, ये करेक्ट है। ठीक है, डेफिनेशन में देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहां पर इनकरेक्ट मींस ओनली 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, कमीशन, जो आप इंटरप्रिटेशन रूल 2 देखिए, कमीशन का डेफिनेशन मींस यूपीएससी, ये करेक्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेफिनेशन, जो एक्चुअली कोई एस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गेजेट नोटिफिकेशन कौन करते हैं? ऑनरेबल प्रेसिडेंट करते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स एनीबॉडी और ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ये ठीक है। कोई स्टेटमेंट सर इनकरेक्ट पूछा है, ये तो दोनों तो करेक्ट है,
सो नाइदर 1 और 2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज डिफाइंड अंडर द जीएफआर। नो है, ये गलत है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को डिफाइन कौन किया है? एफआर एंड एसआर रूल्स। ठीक है, और हेड ऑफ द ऑफिस को डिफाइन किया है जीएफआर। ये अल्टरनेट हो गया, ये भी गलत है। हेड ऑफ द ऑफिस इज डिफाइंड अंडर द फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स, दोनों गलत है। व्हिच स्टेटमेंट्स इज करेक्ट पूछा है, करेक्ट तो कोई नहीं है, दोनों इनकरेक्ट है, बोथ इनकरेक्ट। ठीक है, ये 15 क्वेश्चंस था। ठीक है, जो आजकल का पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है वही मैं डिस्कस किया। अभी देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आएगा, पैटर्न ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस सब डिस्कस कर चुका हूं। ओनली आपको जैसे आपको स्पेस दे देगा, सपोज 100 वर्ड्स के 80 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, 120 वर्ड्स, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन, व्हेन डिड द सीसीए रूल्स 1965 कम इनटू फोर्स, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ये सब डिस्कस में कर चुका हूं अंडर द सीसीए रूल्स 1965। कुछ एग्जांपल्स आपको देना है। व्हाट इज मीन्ड बाय डिसिप्लिन अथॉरिटी, ये भी डिस्कस कर चुके हैं रूल 2 इंटरप्रिटेशन में। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। एक्सप्लेन द टर्म हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड हेड ऑफ द ऑफिस, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। हाउ आर देयर पावर्स डिफरेंट इन रिलेशन टू डिसिप्लिनरी और अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, सब डिस्कस कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिस्कस द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ये भी है डेफिनेशन में। देखिए, हाउ डज इट इंक्लूड पर्सन्स ऑन फॉरेन सर्विस और टेम्पररी प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ अदर अथॉरिटीज, ये भी पॉइंट में है। देखिए, व्हाट इज मीन बाय सर्विस एंड सेंट्रल सिविल सर्विस इन द कंटेस्ट ऑफ दीज रूल्स। सर्विस मीन्स ओनली इट मीन्स यूनियन, दो सिविलियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन यूनियन। और सेंट्रल सिविल सर्विस में बताया था जो बेसिकली इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, जो पर्टिकुलर यूनियन में काम करते हैं। एग्जांपल देके आप लिख सकते हो। डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द स्कोप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द सीसीए रूल्स 1965, हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दीज रूल्स एंड अंडर व्हिच सर्कमस्टांसेस। ये एप्लीकेबिलिटी देखिए, रूल 3। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेंट्रल सिविल सर्विसेज एंड सेंट्रल सिविल पोस्ट, इसको भी डिस्कस कर चुका हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट इज मीन बाय जनरल सेंट्रल सर्विस। जनरल सेंट्रल सर्विस में बता चुका हूं, जो पोस्ट है, जो सिविलियन पोस्ट है अंडर यूनियन, उसको हम बोलेंगे जनरल सेंट्रल सर्विस। और एक है सेंट्रल सिविल सर्विसेज है। ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। हाउ आर पोस्ट नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर सेंट्रल सिविल सर्विस कैटेगराइज्ड। तो ये सब क्वेश्चंस था। ठीक है, क्लियर। तो उसमें मैं 3 चीज के ऊपर ध्यान दिया। रूल 1 to 7 ब्रीफली क्लैरिफाई किया। 15 एमसीक्यू क्वेश्चन जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहा है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कब होगा, जब आपका कंटेंट, रूल जो पोजीशन है, रूल का जो कंटेंट है, उसके ऊपर आपका कमांडिंग होना चाहिए। तब आप कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है वर्ड लिमिट के अंदर, आप लिख सकते हो पॉइंट वाइज। ठीक है, तो आज इतना ही है, फिर वेट कीजिए, इसको मैं पूरा कवर करूंगा। सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेट कीजिए मेरा नेक्स्ट इट मीन्स सीरीज को, नेक्स्ट पार्ट को, पार्ट 2 को। तो प्लीज माय फ्रेंड्स, subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification, and definitely you can get some interesting videos, definitely you can get some interesting MCQs, and definitely you can get some latest pattern of questions. Okay, so आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।